Allow me to proceed with the business of the House. Matters raised with permission. Shri M. Mohammad Abdullah demand for immediate financial relief assistance for the people affected. Nothing is going on record. Sir, nothing is going on record. Nothing is going on record. Affected by cyclone Fengal in Tamil Nadu. No. No. Cyclone Fengal on the district of Chennai, Viluppuram, Kadalur, Chengalpattu, Thiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri and Dharmaburi. The cyclone has caused widespread destruction, severely affecting infrastructure, agriculture and leading to the tragic loss of many lives. These districts, which have faced the brunt of the cyclone, have seen extensive damage to the home, roads, railway lines and bridges, power lines and agricultural land, leaving countless families in the state of distress. Take your seat, take your seat. I find some merit in what is coming from the members. My problem is, and the members would kindly appreciate, I have 8 matters that have been raised. And let me tell you the matters that have been raised. To discuss the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan, concern over law and order situation in Sambal, Uttar Pradesh, concern over law and order situation in the state of Manipur, demand for special category status for Odisha, concern over situation arising out of the recent cyclone Fengal in Tamil Nadu. Sir, can you bear with me? You are an experienced person. I am soliciting cooperation of the House to get feel of the House, how I should proceed. Please take your seat. Then, to discuss the allegation of corruption against Adani Group, concern over deterioration of law and order situation and rise in crimes in Delhi, to discuss need for special assistance to address the plight of people of Wayanad, concern over atrocities on Hindus in Bangladesh, attacks on their temples and arrest of ISKCON priests. Now, honorable members, one second. Honorable member, listen to me. Now, honorable members, some of these issues are already listed in 0 hour. The same member. No. Shri Professor Ram Gopal Yadav, others take seat. Professor Ram Gopal Yadav, others may take seat. प्रोफेसर साहब, उससे पहले प्रोफेसर साहब मार्गदर्शन दीजिए इन मुद्दों में से मैं क्या करूं, आप बताइए प्रक्रिया। अदर्स में प्लीज टेक योर सीट, माइक टेक योर सीट सर। सो मेरा सुझाव यह है कि वाइको जी, सर इज इट अ कंपटीशन बिटवीन यू? Can't you take your seat? Nothing is going on record. Professor Ram Gopal Yadav. सर, संबल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है, मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मैं यहां तक अनुरोध कर चुका हूं कि एक ही सदस्य ने 267 में कई नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्वीकार करूं। असंभव है कि एक साथ उसको 4 बोलने दूं, नंबर 1। नंबर 2, काफी सदस्यों की संख्या है जिन्होंने 0 आवर में भी वो दे रखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इन 0 आवर आई विल अकोमोडेट दिस। ऐसा सर, 1 आवर आई विल अकोमोडेट। एक सेकंड तो मुझे सुन लीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। वो इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं आपको 0 आवर में अभी बुलाता हूँ। मैं लोग 0 आवर में बुलाता हूँ। नहीं, 0 आवर में नंबर 1 पे बुलाइए। हाँ, अभी बुलाता हूँ।
ये जो बोल रहे हैं इसके बाद में आपको मारे गए आपको बुलाता हूँ जीरो गोलियां चली हैं, एक सेकंड सब कुछ प्लीज हुआ और ये कहीं नहीं हुआ है। So, Sri M. Mohammad Abdullah, please complete. Then Professor Ramgopal. Thank you, Chairman, sir. Sir, I wish to raise a matter of urgent public importance regarding the devastating impact of Cyclone Fengal on the district of Chennai, Viluppuram, Kadalur, Chengalpattu, Thiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri, and Dharmaburi. The cyclone has caused widespread destruction, severely affecting infrastructure, agriculture, and leading to the tragic loss of many lives. These districts, which have faced the brunt of the cyclone, have seen extensive damage to home, roads, railway line and bridges, power line, and agriculture land, leaving countless families in the state of distress. In light of the immense destruction caused by the cyclone, I urge the Government of India to provide immediate financial relief assistance of rupees 2,000 crore for the provision of essential aid to the affected communities and to support the restoration of infrastructure and rebuilding of agriculture sector. This financial support is critical for the rehabilitation of the affected areas and for ensuring that the families affected by the disaster can recover quickly. Sir, additionally, I request that a team be dispatched comprising of representatives of Union Government to assess the damage in these districts and prepare a detailed report on the extent of the destruction. The finding of this assessment team will be vital for planning effective rehabilitation measures. Furthermore, I request that the Government of India announce ex gratia payment to the families of those who have tragically lost their lives due to the cyclone's impact as a mark of compassion and solidarity, sir. Thank you, sir. Sri Vaiko, please, I'll accommodate all. Sri Vaiko came here in 1974. Honorable Chairman, sir, the situation in Tamil Nadu is very serious. Flights suspended, trains disrupted, and normal life in 7 districts in Tamil Nadu were disrupted as Bengal cyclone hit Tamil Nadu and Puducherry. There was heavy and very heavy rainfall in some districts, due to which some areas were flooded and standing crops, thousands of acres of standing crops were damaged. The common people have to undergo untold misery in some districts, especially Kadalur, Viluppuram, Thiruvannamalai, Krishnagiri. There was heavy rainfall. Many persons lost their lives, and 10 persons, including children, died in other districts due to electrocution and wall collapse. The fishermen in Nagarpatnam and Mayiladuthurai did not go to sea, but their boats and fishing nets were damaged due to cyclone. Fishermen are losing their source of livelihood as they are advised not to venture into sea. There are extensive damages to standing crops as thousands of acres have been inundated and submerged in the flood water. The standing crops have been completely damaged. Vegetables and fruits grown by farmers could not be marketed due to floods, and their price have persisted. Rainwater inundated several residential localities, and many residents were stranded. The army was requested to assist the National Disaster Response Force and the civil administration in rescue operations. I would request the Honorable Home Minister to rush the rescue and relief materials, send a survey team to assess the damages and to sanction adequate funds and grants to the Government of Tamil Nadu for the rehabilitation of the affected persons, and to give compensation to the farmers so that the normalcy can be restored at the earliest. Thank you, sir. Sri Subhas Kuntia, next is Ramgopal ji. Sri Subhas Kuntia, demand to build an international airport in Puri, Odisha. I will accommodate everyone. If anyone rises, the accommodation will not take place. Sri Subhas Kuntia. Jai Jagannath. Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to draw the government's attention to the urgent need of the yearly operation of the proposed international airport in Puri. Under the visionary leadership of the former Chief Minister Sri Naveen Patnaik, the Odisha government submitted a detailed project report for the Puri International Airport featuring world-class facilities to the Ministry of Civil Aviation in July 2023. The airport's location was strategically selected due to Puri's historical and spiritual significance, particularly as the home of the sacred Jagannath temple and its numerous tourist attractions. This proposed international airport aims to
cater to the rapidly increasing number of tourists and pilgrims visiting Puri, which is globally renowned for its cultural and religious heritage. Additionally, its proximity to the beach further enhance its potential to attract international and domestic visitors. The necessity of the airport, which was highlighted in 2021 when Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik requested Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi to establish an international airport in Puri. While the Odisha government has completed formalities including land acquisition and the construction of a boundary wall, no further progress has been made to advance the project towards operational. One operational, the Jagannath Puri International Airport will not only address the growing travel demands of pilgrims and tourists, but will also provide direct air connectivity to Puri, facilitating the exploration of its renowned attractions such as the Jagannath Temple, Puri Beach, and nearby historic sites like the Sun Temple at Konark. In light of this consideration, I respectfully urge the Honorable Minister of Civil Aviation to take the necessary steps to expedite the completion of and operation of the Puri International Airport for the greater benefit of tourists, pilgrims, and the region's overall development. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. Professor Ram Gopal Yadav. श्रीमान 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संबल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संबल में पुलिस छावनी बना दी गई। संबल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। उससे ध्यान बटाने के लिए राम गोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार पी demand to declare recent landslide in Wayanad district as calamity of severe nature under level 3 disasters. Made your point, sir. Made your point. Santosh Kumar P. Thank you, sir. Go ahead. Nothing is going on record except Santosh Kumar P. Sir. कह दिया सर आपने। Sir. You made your point. Sir, गोपाल जी, आपने वकीलों पर कहा पर आप बहुत अच्छे वकील हैं। You made your point. संतोष कुमार पी, go ahead. Sir, 3 minutes से भी कम में 0 hour होगा. Sir. संतोष कुमार पी, please go ahead. Sir. Only Santosh Kumar P. Thank you, sir. Santosh Kumar P. Landslide happened in some parts of Mundakai village in Wayanad in Kerala is unparalleled in the history of natural calamities in Kerala. It took more than 420 lives, 109 lives are still missing, and more than 1,000 buildings, including mosques, churches, schools, buildings, houses are completely damaged. So there's a request from our side to consider this as a calamity of severe nature, level 3 nature. And we have submitted a plan of
2,221 crores of rupees to rehabilitate the affected people and places. Sir, what we feel is that instead of declaring this as a calamity of severe nature, we feel the treatment of this center is a kind of cruelty of severe nature. It's not supporting the state of Kerala. The Prime Minister was kind enough to visit the spot on 10th August itself. But I'm content to state that it has ended with some good photos and videos. So this kind of approach must be revisited. We demand the inclusion of this calamity as level 3 calamity, and central laws related to natural calamities are actually illogical and impractical as far as our side is concerned. So there is a need to revisit these laws also. Politics should not be a barrier to help the people of a state. Of course, we all have political differences, and it should not be a barrier to, helping people of state of Kerala. So once again, I take this opportunity to include this as a calamity of severe nature, sir. Srimati, I'll come to you. Srimati Sangeeta Yadav, need for promulgation of government schemes meant for women's empowerment. माननीय सभापति जी, आपने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार करती हूँ। माननीय सभापति जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाएं। एक सेकंड, संगीता जी, 1 second. Honorable members are aware that when a particular matter is raised in 0 hour, that may be in the heart of many people. They associate. Would you take your seat first? They can, 1 second. They can associate, they can't say anything. That is the practice. Sangeeta ji, go ahead. Only Sangeeta ji. सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ अधिकतम तब होगा जब इनकी जानकारी व्यापक रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा सके। माननीय सभापति जी, हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ और नए और प्रभावी उपाय किए जाएं। जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और इन महिलाओं के ट्रेनिंग के द्वारा इनको बताया जाए कि कैसे इन योजनाओं का लाभ वो घर बैठे उठा सकती हैं। और मैं माननीय सभापति जी ये भी अपील करूंगी कि स्थानीय भाषाओं में इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए। साथ ही सामुदायिक रेडियो, लाउड स्पीकर, नुक्कड़ नाटकों और पंपलेट्स के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार गांव-गांव तक किया जाए। इन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों को भी शामिल किया जाए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं से जुड़े और इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। श्री प्रमोद तिवारी, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय जो संभल में है उस पर मेरी वो तो बात हो गई है। प्रमोद जी, अभी मैंने बताया एक विषय पर जब बात हो गई, योर एसोसिएशन विल बी टेकन नोट ऑफ। नहीं, 2 मिनट मैं कह दूं, ये इंडियन वर्शिप एक्ट, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद जी, nothing will go on record. सर, संभल पे nothing. Number one, it will not go on record for a good reason. मेरे नोटिस I cannot be party to deviation from rules. Sir, I cannot. If a particular member has raised first in point of time an issue in 0 hour, there may be several members raising it. They can associate. कांग्रेस की तरफ से इतनी चिंता हम व्यक्त करते हैं कि इंडियन वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है संभल। No. Please take your seat, Priyanka ji. I will not allow. Take your seat. You have to maintain discipline. Sorry, it is not a platform that we can speak anything. Sorry, please take your seat. I am so sorry. Shri Shakti Singh Gohil, concern over misuse of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme in Ahmedabad. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसी बात आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के
इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों रुपये उठाने के आए एक भ्रष्टाचार का एक सोची समझी साजिश। एक अस्पताल जिसने अहमदाबाद में की, ख्याति अस्पताल ने, वो क्या स्कीम करते थे? गांव में चले जाते थे, फ्री मेडिकल कैंप के नाम पे कैंप लगता था। गरीब लोग जब आते थे उनको कहते थे, अरे तुम्हारा तो हार्ट में ब्लॉकेज है, कल ख्याति अस्पताल आ जाना, आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और फिर वहां जिनको कोई जरूरत नहीं, उसकी एंजियोग्राफी और स्टेंट लगा देते थे। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उस अस्पताल ने उठा ली। एक कड़ी में कैंप लगा नवंबर महीने में, कुछ दिन पहले। सभापति महोदय, वहां पे कोई अपनी पत्नी को दिखाने गया था, उस पति को पकड़ लिया कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। 2 लोग वहां पे, जब ख्याति अस्पताल में जिनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें से 2 लोग मर गए। काफी लोग वहां पे आईसीयू में भर्ती करने पड़े। तब सरकार जागी और जांच हुई तो पाया कि ये तो बार बार करके करोड़ों रुपए इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ले लिए हैं और जिनको कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके पैसे उठाने का षड्यंत्र चल रहा था। यही अस्पताल ने 2022 में इसी तरह से कैब से लाए हुए लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। सरकार की जिम्मेवारी थी उसी वक्त अगर इस अस्पताल के ऊपर कार्यवाही हो जाती तो दूसरा हादसा नहीं होता। आज सर काफी लोगों ने जान गंवाई। अब अस्पताल में जो मेन एक्यूज्ड है वो फॉरेन में फुर्र हो गया, वो भाग गया है। और करोड़ों रुपए, पैसों से भी ज्यादा सर वो गरीब की जान की कीमत है। कितना भी मुआवजा देंगे, उस गरीब परिवार के उन लोगों की जिनकी जान गई है, उनको हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता है सर। जब तक मिली भगत नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्थानीय सरकार के साथ, ऐसी चीजें नहीं घट सकती बार बार। मेरी गुजारिश है सरकार को कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सुपरविजन में सीबीआई की जांच यहां पे करवाइए आप, क्योंकि यहां ये चीज इतनी गंभीर है। लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटी की मिलीभगत साफ दिखती है और ये सेंट्रल धन्यवाद माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय डॉक्टर अजीत माधव राव गोपछड़े, कंसर्न ओवर यूज ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेररिज्म, प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, सर, अवैध इंटरनेट जुए और सट्टेबाजी का ये आतंकवाद के वित्तीय समर्थन में भूमिका, इस पर मैं मेरा विचार रख रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा से यह गंभीर मुद्दा जुड़ा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की सुरक्षा और वैज्ञानिकी तकनीकी अनुसंधान संघ की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए एक साधन के रूप में कार्य कर रही है। अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप भारतीय डिजिटल उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के हमलों और असुरक्षित ऑनलाइन वातावरण जैसे कई खतरों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं, क्योंकि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ ये वेबसाइटें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का माध्यम बन रही है। जैसा कि सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ, जिसे हम SASTRA बताते हैं, जिसे बताया है, वर्तमान कानूनी और नियामक ढांचा वैध और अवैध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करता है, जिसके कारण अवैध प्लेटफॉर्मों को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। जैसी भारत में ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिए सरोगेट विज्ञापन एक प्रमुख प्रवृत्ति बन चुकी है। जुए और सट्टेबाजी सेवाओं के विज्ञापन पर
कानूनी प्रतिबंध के चलते ऑपरेटर वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार को इन सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है और ये ऑनलाइन जो सट्टा जो चल रहा है और ये जो ऑनलाइन इंटरनेट के जो जुए चल रहे हैं, बहुत जगह पर इसका हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और आने वाले जनरेशन के लोग इसका शिकार बन रहे हैं और इसका आतंकवाद से बहुत बड़ा पैसा इसमें इसके माध्यम से अतिरेकी लोगों को, हमारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जा रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तुरंत इसके ऊपर हम गंभीरता से ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये गांव-गांव में तक मोबाइल के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से 16 से 17 साल के बच्चों से लेके 25 साल तक के बच्चे इसके बीच में आ रहे हैं और इसका एक बहुत ही गलत तरीके का उपयोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए और ये खतरा बन गया है। धन्यवाद। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, कंसर्न ओवर प्रिवेलिंग इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, आपके साथ एसोसिएट कर रहे हैं माननीय श्री विक्रमजीत सिंह सहाने, माननीय श्री मानस रंजन मंगराज, माननीय श्रीमती रंजीत रंजन जी, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी, प्लीज रेज द इशू। सर, उत्तर भारत ने आज एक धुएं की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं। सर, एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, और आज दिल्ली से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, विदिशा, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में है। लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। IIT की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पे फाइन लगाया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कोई भी किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और इस साल तो हमारे सूबे पंजाब ने 70% से ज्यादा गिरावट देखी गई स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में, जहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाने की वारदातें बढ़ी हैं। सर, पंजाब ने धान की खेती क्यों शुरू करी? पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू करी क्योंकि देश का पेट पालना था, देश में अनाज की कमी थी। धान की खेती से पंजाब का भारी नुकसान हुआ सर, हमारा पानी 600 फीट नीचे चला गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, और वो भी तब जब चावल हमारी खुराक नहीं है, हम पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है सर। और धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है, उस पराली को साफ करने के लिए किसान के पास मात्र 10 से 12 दिन होते हैं, क्योंकि अगली फसल बीजनी होती है। अगर 10 से 12 दिन में इस पराली को साफ ना किया जाए तो जो अगली फसल है उसकी यील्ड गिर जाती है। इसीलिए किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें, उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है, जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर, अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी, और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि धान की खेती से हमें कॉटन, मक्की, पल्सेस, ऑयल सीड्स की ओर हमें बढ़ना होगा। हम AI की तो बहुत बात करते हैं सर, AQI की बात करनी होगी, और जैसे राजनीतिक दल बूथ बूथ पर रणनीति। माननीय सदस्यों, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इस इशू पर माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी, माननीय श्री मानस रंजन मंगराज जी, श्रीमती रंजीत रंजन जी, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी ने एसोसिएट किया है। नाउ माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, concern over decline in medal tally at Olympic Games. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir.
This is a very important subject. Despite substantial focus and investment of approximately 500 crore rupees in last 3 years for the Paris Olympics participation, and also we have spent more than 100 crore for athletes. India, unfortunately, has a very disappointing rank of 71 on the overall medal tally. This raises a very critical question about our sports development strategy. Sir, the situation highlights very serious issue on what is our strategy as a country to place ourselves in the global platform, especially when we are becoming, fifth largest economy. We are already a fifth largest economy. But in line with that, if in our sports, on our international platforms in the sports, if you have to see, there is certainly a glaring inequality in the sports infrastructure and strategy support. While elite athletes benefit from the world-class training and also medical support, grassroots supports remain underfunded and overlooked. This limits the opportunity for young athletes in rural and disadvantaged areas. India's position in medal tally behind 70 countries underscores a lack of competitive edge, strategy and structuring, revealing systemic issues that needed very urgent attention. Sir, I have few suggestions to the government. At federal government level, I think complete all state government, each state, what is the strategy that need to be provided, and also the corporates and the societies, other sports societies, what is the diagnosis, gaps that are there. We have to prepare a diagnosis roadmap for our entire sports pattern, where the country is heading. In line with that strategy, a proper structuring could be public-private partnership initiatives where various authorities will be brought in to make a structuring for the people, the funding, the processes, all need to be evolved, sir. With that, I think, we must come back and show our capability to the globe. Thank you. Thank you. धन्यवाद माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी. माननीय श्री अजीत कुमार भोयान, concern over functioning of Oil and Natural Gas Corporation in Assam. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to raise an important issue about Assam. Assam was in the forefront since British era in the matter of its natural resources in the form of oil, coal, natural gas, tea, etc. The Digboi oil refinery was established by British. After independence, Government of India took up the trade and ONGC, Oil and Natural Gas Commission, was formed. The regional setup of ONGC in Nazira was entrusted with the responsibility of exploration and production of crude products in the northeastern part of the country. But now, instead of expansion of its activities in a systematic design, some functions are being shifted to Delhi or other places. The functions relating to tender, finance, logistics, etc., or some of those functions are being shifted. A strong resentment has grown up in public mind for these actions. I therefore urge upon the government through this mention that no any activities, functions of Assam asset of ONGC is not shifted out to any place of the country. Thank you. धन्यवाद माननीय अजीत कुमार भोयान जी.
माननीय श्री प्रकाश चिक बाराइक, डिमांड टू कंस्ट्रक्ट फ्लाईओवर एट बीरपाड़ा एंड कामाख्यागुडी इन वेस्ट बंगाल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने क्षेत्र के गंभीर मुद्दा को इस सदन पटल के रखने के लिए खड़ा हूं। अलीपुरद्वार जिले के दो महत्वपूर्ण फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर, बीरपाड़ा जो अलीपुरद्वार जिले के मदरीहाट विधानसभा में है, एवं कामाख्यागुड़ी रेलवे फ्लाईओवर जो कुमारग्राम विधानसभा में है। दोनों फ्लाईओवर के बाद ग्रामीण अस्पताल एवं स्टेट जनरल अस्पताल है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, फ्लाईओवर नहीं होने के कारण, आरओबी नहीं होने के कारण वो उसी जगह पे असुविधा का सामना करना पड़ता है। एवं गंभीर समस्या ये है डिप्टी चेयरमैन सर, जो मैक्सिमम पेशेंट आरओबी नहीं क्रॉस करने का कारण वहाँ मर भी चुके हैं। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय को बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये दोनों फ्लाईओवर बनाने की कोशिश करें, एवं ऑलरेडी जिला प्रशासन, राज्य सरकार जितना भी जमीन लगेगा इसका इंस्पेक्शन करके रेलवे को जमा किया है। साथ ही साथ मैं और बीरपाड़ा के डोलोमेट को लेके, जो दलगांव स्टेशन पे डोलोमेट जो आती है, जो भूटान से आती है, एवं डोलोमेट के पॉल्यूशन के कारण मैक्सिमम वहाँ के लोग, जो बीरपाड़ा 1, बीरपाड़ा 2 के लोग हैं, उनको दमा का बीमारी हो रहा है, कैंसर का बीमारी हो रहा है, एवं इसका रिपोर्ट ऑलरेडी जिला प्रशासन वहाँ दे चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को बोलना चाहता हूँ, जो डोलोमेट साइडिंग के लिए दलगांव स्टेशन को में जो डोलोमेट साइडिंग होता है, इसका स्थानांतरित करे एवं जल्द से जल्द इसका स्थानांतरित करे। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश चिक जी। माननीय श्री सम्मिक भट्टाचार्य, डिमांड टू इनहेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कोलकाता। Thank you, sir. It is a serious security threat to the Shah Institute of Nuclear Physics. The premier research institution under the Department of Atomic Energy was established by the eminent scientist Meghnad Shah and a foundation stone led by Dr. Shama Prasad Mukherjee. Now, sir, iska jo northern part hai of the world, entire institution, it is a high security zone, and all Department of Atomic Energy establishment are specially protected under Atomic Energy Act 1962. इस इंस्टीट्यूशन से 4 बार विधाननगर, सॉल्ट लेक जिसको कहा जाता है कलकत्ता में, 4 बार पुलिस स्टेशन में इसका सारे इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जा चुके हैं। इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है, उसका जो वॉल है, उसका बाहर में कुछ अनऑथोराइज्ड लोग वहां मौजूद हो गया। सारे के सारे भारी तादाद पे लोग वहां पहुंच गए। It's a serious security threat. All are Rohingyas. All are Bangladeshi infiltrators. Please. All are Bangladeshi infiltrators. Please take your seat. Unfortunately, we are living in a such state where infiltration being welcomed. हम लोग खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे तो क्या होगा इसका ऊपर? अगर ऐसे एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बाहर में भी अगर रोहिंग्या आकर बैठ जाए और रोहिंग्या को वेलकम करे, तो कहां भी पश्चिम बंगाल पे हर जगह में उसका इशू क्या है आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंसिटिव इशू है, हम ये सेंसिटिव इशू है, बिकॉज यू आर वेलकमिंग द रोहिंग्यास इन वेस्ट बंगाल। आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। आपस में इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ दिस कंट्री आल्सो इज अंडर थ्रेट because of the carelessness of this government. They are entirely also responsible for this. सर कैसे ये घुसपैठ को बढ़वा देते हैं? आज शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का बाहर में बैठे हैं, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। कितना दिन चल सकता है ऐसा मामला? अब बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का हिंदू को ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल के भीतर ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारा डेमोग्राफिक डिजाइन चेंज कर दिया। शाह इंस्टीट्यूट इसका चपेट में है। एटॉमिक एनर्जी कंसर्न मिनिस्ट्री should immediately evicted that person of that particular place.
इट इज माई डिमांड, ये करना चाहिए। ये भारत से ये एटॉमिक एनर्जी सेंटर का बाहर में रोहिंग्या बैठ जाए, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बोलिए? 4 बार लिखा हुआ है डायरी, आई एम ऑथेंटिकेट द फैक्ट्स। 4 बार गए हुए पुलिस स्टेशन में, पुलिस का इनएक्शन बिकॉज ऑफ द ब्लॉक वोट, बिकॉज ऑफ ब्लॉक वोट। आपको सेफ्टी प्लीज माननीय श्री ब्रिजलाल जी, डिमांड टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव मीन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टबल बर्निंग। धन्यवाद सर। मैं प्रश्न जो आज मेरा विषय है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, और वेरी सीनियर मेंबर। डिप्टी चेयरमैन सर, प्लीज 1990 के दशक तक 0 आवर, इट्स पराली हमारी समस्या नहीं थी। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स 0 आवर, यस प्लीज। प्लीज इंडिकेट, विल एग्जामिन इट, थैंक यू। प्लीज माननीय ब्रिजलाल जी, नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। 1990 के दशक तक पराली हमारी समस्या नहीं थी। जो किसान थे इसका सदुपयोग कर लेते थे जानवरों के चारे के रूप में, और जब हम आलू बोते थे तो उसके ऊपर डाल देते थे और उसमें इस्तेमाल होता था। और आज जो समस्या पराली की है, जलाने की है, वो पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। अब इसके निदान के लिए, पराली के निदान के लिए एक समस्या है, इसको करने के लिए कि अल्टरनेटिव क्रॉप। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मिलेट्स की बताई, आज मिलेट्स जो है हमारा मिलेट विश्व में जा रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए है। तो धान की जगह अब हम लोग धान भी हम लगाएं, लेकिन साथ साथ अगर हम मिलेट्स लगाते हैं तो धान का रकबा कम होगा, पराली कम होगी और उसके बाद उसका सदुपयोग हो जाएगा। महोदय, पराली का एक बहुत बड़ा प्रयोग हमारे देश में ही हो रहा है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बंगाल में, जहां इससे मशरूम पैदा किया जाता है। ये मशरूम गर्मी में पैदा होता है 35 से 40 डिग्री में, इसको पैडी मशरूम कहते हैं। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 1940 में हुई थी और विश्व में इसका काफ़ी प्रयोग पैडी मशरूम के रूप में हो रहा है। हमारे देश में ही, बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में इसको हम पैडी मशरूम के उत्पादन के लिए किसानों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक डिकम्पोजर डेवलप किया है। वो डिकम्पोजर पराली में डाल दीजिए और पराली 2 हफ्ते के अंदर वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है और उस खाद का उपयोग किसान जो है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, उर्वरकता बढ़ती है और पराली का सदुपयोग हो जाता है। एक टेक्नोलॉजी और आई है जिसमें पराली के पेलेट्स बना लिए जाते हैं और वो तमाम हमारी थर्मल पावर जो हैं उसमें इस्तेमाल करती हैं, तो पराली का इस्तेमाल उसमें हो सकता है। हमारी तमाम गौशालाएँ हैं, हम गौशालाओं में उसको दे सकते हैं, जानवर उसको खाता भी है और जो पराली वहाँ पर सड़ती है तो एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है। हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसका प्रयोग गांव में होता था और जैसे ठंडक आती थी हम अपने घारी में उसको बिछाते थे, जानवर को आराम मिलता था, खाते थे। उसके बाद जब ये आता था होली तक बहुत अच्छी खाद उसमें हमको मिल जाती थी। तो धन्यवाद, धन्यवाद माननीय ब्रिजलाल जी। माननीय श्री धनंजय भीमराव महादिक, नीड टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ शुगर। धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, भारतीय चीनी उद्योग का एक लंबा और संपन्न इतिहास रहा है। गन्ने से चीनी बनाना प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। देश का चीनी उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चीनी उद्योग देश के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा गन्ना उत्पादक किसानों के परिवार का जीविका का साधन है। देश में करीब 550 चीनी मिलें हैं। इस उद्योग से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमारे देश में हर साल करीब 360 से 400 लाख मेट्रिक टन तक शुगर का उत्पादन होता है। 2022-23 में हमने करीब 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट भी की है सर। हमारा जो डोमेस्टिक शुगर कंजम्पशन है वह करीब 260 लाख टन है। गन्ना उत्पादक जो फसल निर्माण करते हैं उसकी ग्रॉस वैल्यू करीब 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है।
लेकिन यह पूरा उद्योग क्लाइमेट चेंज पर निर्भर करता है। कभी कम कभी ज़्यादा बारिश से उस उद्योग को भारी नुकसान भी होता है। केंद्र की सरकार ने शुगर केन का प्राइस यानी FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निश्चित की है, जो रिकवरी पर आधारित है। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होता है। यह FRP किसानों को 2800 से 3300 रुपये तक पर टन इनकम दिलाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने चीनी की भी MSP निश्चित की है, जो 3100 रुपीज़ है। पिछले 7 साल से MSP का रेट 3100 है। एक तरफ FRP हर साल बढ़ रही है, लेकिन चीनी की जो MSP है वो 3100 पर ही सीमित है। इसकी वजह से चीनी मिलों को भारी नुकसान हो रहा है सर। चीनी मिलों को गन्ना क्रशिंग करने के बाद जो चीनी निकलती है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये 42 रुपीज़ से 45 रुपीज़ तक बढ़ गया है। आप समझ सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट 42 रुपीज़ और शुगर सेलिंग कॉस्ट 31 रुपीज़, यह संभव नहीं हो रहा है। देश की सभी संस्थाओं ने, ISMA, नेशनल शुगर फेडरेशन, महाराष्ट्र साकर संघ, इन्होंने सरकार से ये मांग की है कि चीनी का सेलिंग प्राइस MSP 42 रुपीज़ किया जाए, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को ज़्यादा लाभ होगा और समय पर उनकी फसल का भुगतान भी हो पाएगा। और जो चीनी मिलें घाटे में चल रही है, जो चीनी मिलें बंद होने के कगार में हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। उपसभापति जी, हमारे देश में जो चीनी निर्माण होती है, उसमें से 75% चीनी ये प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मिठाई, जो आम इंसान के खास ज़रूरत में जैसे जीवन आवश्यक वस्तु में नहीं गिनी जाती। धन्यवाद माननीय महाधिक जी। माननीय श्री नीरज डांगी, रिक्वेस्ट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मॉनिटरिंग द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज। थैंक यू सर। आज देश के सामने वन्य जीवों को लेकर के एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से जो लुप्त प्राय हो रही वे प्रजातियां, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, चीता आदि बड़ी बिल्लियों की श्रेणियां शामिल हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए, ये एक चुनौती है। देश में वन्य जीव, लुप्त प्राय टाइगर, लेपर्ड आदि के संरक्षण हेतु उनकी निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की जानी चाहिए। उनके आकार, उनकी चाल आदि से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा जानवर जंगल में क्या गतिविधि और क्या कहां पर गतिविधि कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पशु पहचान प्रणालियां अधिक लागत प्रभावी भी हैं और पारंपरिक जो तरीके हैं उनकी तुलना में इसमें कम कार्यबल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण हमारे पर्यावरण के कल्याण और भविष्य के मानव कल्याण में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और मैं समझता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अगर इन वन्य जीव संरक्षण के लिए किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन देश के लिए इनका संरक्षण होगा। हमें इंसानों को भी बचाना है और वन्य जीवों को भी बचाना है। और वन्य जीव जब जंगल के आसपास के गांवों में जब घुस जाते हैं तो वो मनुष्यों पर और उनके मवेशियों पर जो है उनके नुकसान पहुंचाते हैं। उस वजह से मनुष्यों का वन्य जीवों के प्रति एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अगर पुख्ता कोई व्यवस्था अगर की जाती है तो मैं समझता हूं कि उसमें वन्य जीवों को और मनुष्यों को दोनों को बचाने का कार्य इस प्रणाली से किया जा सकता है। अभी हाल ही के अंदर रणथंबोर के अंदर देखा कि 25 बाघों का के लापता होने की खबर आई। Question hour. Question hour. It is not